It's hard to resist the thing that I missed for so long. Can't remember what it's like, just remember I need it. Even if I'm on the train I thought I'm on wasn't the right one. Gotta trust a God, yeah, no matter what happens. Ooh, you're not what I thought. Ooh, you're not what I thought. You're not what I thought you were. Don't think I can find a cure. And I feel like I'm falling deeper. Got me falling for you, got me falling for you. Falling deeper. You got me falling for you, got me falling for you. Falling deeper. Got me falling for you, got me falling for you. Falling deeper. You got me falling for you, got me falling for you. Feel like I'm falling deeper. Got me falling for you, got me falling for you. Falling deeper. You got me falling for you, got me falling for you. It's hard to resist the thing that I missed for so long. Can't remember what it's like, just remember I need it. Even if I'm on the train I thought I'm on wasn't the right one. Gotta trust a God, yeah, no matter what happens. आपको एक फुटबॉलर की मेहनत का सबूत दूं? ये है सबूत। You're not what I thought. You're not what I thought you were. Don't think I can find a cure. And I feel like I'm falling deeper. Got me falling for you. Burn 'em, burn 'em. How much money I be making, I'ma burn 'em, burn 'em. I'ma murk 'em. And if they playing with this fire, I'ma burn 'em. Murder, it's a murder. Disrespect this time I spark it, I'ma burn 'em. And I be searching, I be lurking, I'ma hurt 'em. And all these bridges that I'm building, I'ma burn 'em, burn 'em, burn 'em. How much money I be making, I'ma burn 'em, burn 'em. Smoke it up. Burn 'em. Whop a nigga's bucket, I'ma serve 'em. Spinning on a block with a mop, I disturb 'em. I never killed a nigga, but I'm ready to spit a hollow right on a person. And the curse, I'm about to merge on a nigga's turf. I'ma let a nigga burn, burn, let him burn. And these pussies better learn. When I pull up, I'ma burst. Make a nigga see stars spinning, leave him on a curb. Burn 'em, burn 'em. All this money I be making, I'ma burn 'em, burn 'em. Run him down till he out of town. And I got it on me, nigga, don't you fuck around. Moving with a stick, it's in the whip, not the shift. But I'll switch it to the beam when I'm standing on your ground. You should know to never come around my town. You're not welcome in the hood cause you a clown. I got shooters ready just to lay you down. And they not afraid to waste a couple rounds. Burn 'em, burn 'em. All this money I be making, I'ma burn 'em, burn 'em.
सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट कॉन्शियस। मेरा नाम शौर्य है। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एज ऑलवेज मेंटली एंड फिजिकली फिट हो गए। सो बिना किसी तरीके आज का एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस। आज 8 जनवरी 2022 है और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज है डे 45 ऑफ रोड टू बी प्रोफेशनल फुटबॉलर जर्नी। एंड अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रिकैप दे देना चाहता हूँ बिकॉज मैंने कल शाम को ट्रेनिंग करते हुए ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा था एंड बहुत कुछ हो चुका है जिसमें से आपने एक पुश वर्कआउट भी देख लिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रिकैप दे देता हूँ। कल के जो दिन की शुरुआत हुई थी वो एक लेग और शोल्डर के वर्कआउट से हुई थी और उसके बाद मैं वापस घर आया और एक व्लॉग मैंने एडिट करा, घर के छोटे मोटे काम थे वो निपटाए और उसके बाद मैं चला गया अपनी ट्रेनिंग की पिच की तरफ और बढ़िया तरीके से मैंने ट्रेन करा। एंड उसके बाद भैया बहुत महीनों के बाद मैंने अपने आप ये कह सकते हो एक जेम के साथ ट्रेन करा और वो जेम क्या था वो आपने वैसे देख ही लिया होगा। वो मेरे एक आप ये कह सकते हो कि बहुत ख़ास और आप ये भी कह सकते हो कि मेरे पास कोई अभी शब्द नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ही इज़ द जेम जिन्होंने मेरे को फुटबॉल सिखाया। और मैं सारी चीज़ें अभी रिवील नहीं करूँगा, आने वाले कपल ऑफ ईयर्स में मैं शायद रिवील करूँ जब मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं, ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बन जाऊं, तो तब मैं सारी चीज़ें रिवील करूंगा जो कुछ भी स्टोरी होगी। लेकिन ऑफ कोर्स कल का जो दिन था बहुत ज़्यादा स्पेशल था एंड ऑफ कोर्स उनके साथ मैंने 1v1 अच्छे तरीके से ट्रेन करा, बहुत मज़ा आया एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ क्रेज़ी मैच और ऑफ कोर्स मैं उसमें जीत भी गया एंड ऑफ कोर्स भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यस, अभी मैं अपने जो जब भी मैं उनको रिमेंबर करता हूँ ना तो आप ये कह सकते हो कि मैं खो सा जाता हूँ एंड मेरे पास कोई भी शब्द नहीं होते। सो एनीवेज इट वाज अ ग्रेट ट्रेनिंग सेशन। तो ट्रेनिंग सेशन करने के बाद मैं घर आया और अपने जो भी सारे काम थे वो निपटाए, रिकवरी सेशन करा और उसके बाद रात को सो गया। फिर मैं सुबह उठा एंड ऑफ कोर्स आपने देख ही लिया होगा कि आज के जो दिन की शुरुआत हुई थी वो एक पुश वर्कआउट से हुई थी। एंड अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ और ऑफ कोर्स जो कोई भी बिगनर होगा ना उनके लिए ये जो मैं अब टिप्स शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और ऑफ कोर्स आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली है। और किस चीज़ की परफॉर्मेंस, वो मैं एक जिम की बात करने वाला हूँ। तो द फर्स्ट टिप, और आप ये कह सकते हो कि ये एक कॉमन टिप है जो कोई भी बिगनर है उनके लिए, कि स्टार्ट विद लाइट वेट्स। तो बहुत से बिगनर और आप ये कह सकते हो 70 to 80% जो मैंने अभी तक देखे हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं और बढ़िया तरीके से हैवी वेट्स उठाना स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। और ऑफ कोर्स मेरे ट्रेनर ने मेरे को ये बताया था कि अगर हैवी वेट्स फालतू के अगर तुम उठाओगे जितनी तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा वेट उठाने से जो मसल्स है उनकी ग्रोथ होती है एंड ऑफ कोर्स ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तुम अपनी कैपेसिटी से बाहर चले गए और तुम्हारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम उतना वेट उठा सकते हो तो उससे कुछ नहीं होता, बस आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है टिप नंबर 1। सो द सेकेंड टिप विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी कॉमन है और 90% ऑफ द बिगनर्स अपने फर्स्ट 6-7 मंथ्स में ना ये चीज़ कभी परफॉर्म करते नहीं है बिकॉज उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और आप ये कह सकते हो कि टिप है जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल तो बनाएगी बनाएगी और आपको इंजरी से भी दूर रखेगी, विच इज़ वार्म अप। तो मैंने ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हो कि 90% ऑफ द जिम गोवर्स जो इवन आप ये कह सकते हो कि 1 साल से भी ट्रेन कर रहे हैं वो कभी भी वार्म अप नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते। आप ये कह सकते हो वार्म अप के अंदर भी स्ट्रेचिंग आ जाती है, तो वो बिल्कुल भी अपनी मसल्स को ना स्ट्रेच करते हैं ना वार्म अप करते हैं और डायरेक्टली जाके वेट्स उठाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सेकंड टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जिम जा रहे हो तो अच्छे तरीके से वार्म अप और स्ट्रेचिंग करके ज़रूर जाएं। एंड ऑफ कोर्स उससे क्या होगा कि आपके जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा एंड ऑफ कोर्स जो मसल्स हैं वो अच्छे तरीके से स्ट्रेच भी हो जाएंगी एंड आप अच्छे तरीके से वेट्स भी उठा सकोगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे तरीके से स्ट्रेच करते हो और आप ये कह सकते हो कि वार्म अप करते हो तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो जिम के अंदर बढ़ जाएगी और आप ये भी कह सकते हो कि फिर आपकी जो वेट्स उठाने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ ऐड कर लो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ जिम गोअर्स कि भाई
अच्छे तरीके से वार्म अप और स्ट्रेचिंग करो और 10-15 मिनट की ये अच्छे तरीके से वार्म अप और स्ट्रेचिंग का सेशन करो और उसके बाद जाके बढ़िया तरीके से वेट्स उठाओ। सो टिप नंबर 3 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आई थिंक अगर आपकी परफॉर्मेंस यहाँ है ना, तो ये जो टिप होने वाली है आपकी परफॉर्मेंस यहाँ लेके आ जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना विच इज़ प्रॉपर फॉर्म। और ये मेरे को 3-4 दिन पहले मेरे ट्रेनर ने बताया जब मैं बेंच प्रेस कर रहा था तो उसकी प्रॉपर फॉर्म क्या होती है। तो ऑफ कोर्स मेरी जो बैक की फॉर्म है वो परफेक्ट है, लेग की जो फॉर्म है वो परफेक्ट है और बाकी सारी जो भी एक्सरसाइजेस करता हूँ उसकी जो मेरी फॉर्म है वो परफेक्ट है। लेकिन बेंच प्रेस की जो मेरी फॉर्म थी एंड इवन आप ये कह सकते हो कि अदर जो मैं चेस्ट की एक्सरसाइजेस करता था उसकी जो फॉर्म थी वो परफेक्ट थी, लेकिन बेंच प्रेस में मेरी जो फॉर्म थी वो अच्छी नहीं थी। तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि मेरा जो रिज़ल्ट था ना वो थोड़ा सा डाउन हो रहा था एंड ऑफ कोर्स उससे इंजरी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो चीज़ है आई थिंक जो भी अब बॉडी बिल्डर्स बन चुके हैं उनको मतलब एक रिग्रेट उनके स्टार्टिंग के 1-2 साल में ये रहता था कि उनकी जो फॉर्म है वो प्रॉपर नहीं हो पाती थी। तो एज अ बिगिनर अगर आप इस चीज़ को फटाफट से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे और एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉर्म से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स आज जब मैंने 35 kgs की बेंच प्रेस मारी विद प्रॉपर फॉर्म तो आप ये कह सकते हो कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। जब मैं पहले विदाउट फॉर्म बेंच प्रेस परफॉर्म करता था विद दिस 35 kgs तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और आज मैंने 8 रेप्स मारे तो आप ये कह सकते हो कि विदाउट फॉर्म मैं 12 रेप्स मार देता था, 10 रेप्स मार देता था, लेकिन प्रॉपर फॉर्म के साथ मैंने 8 रेप्स मारे। तो ऑफ कोर्स वो जो 8 रेप्स थे ना वो इतने मतलब टू द पॉइंट थे कि जो मतलब चेस्ट थी उसकी जो एक्टिवेशन हो रही थी वो 100% हो रही थी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जितनी आपकी जो फॉर्म है वो प्रॉपर होगी विद इवन लेस वेट तो उतने आपको जो रिजल्ट्स है वो नेक्स्ट लेवल के दिखेंगे और आपकी जो मसल होगी वो डेवलप होगी। वर्कआउट करने के बाद मैं घर वापस आ गया था। ओके सो गाइज आज की जो थॉट ऑफ द व्लॉग होने वाली है वो द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड ने बोली है, हु इज़ एलन मस्क। तो उसने ये चीज़ बोली थी अपने एक इंटरव्यू में कि लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट इंस्पायर्स यू टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। सो ये जो लाइन एलन मस्क ने बोली है और आई थिंक जो इसका इम्पैक्ट मेरे दिल और दिमाग पे पड़ा है जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस थॉट ऑफ द व्लॉग को लेके, वो ये है कि लाइफ जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम क्या होते हैं ना कि बस ये सोचते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है कब ख़त्म होंगी, क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स जो है मेरी ज़िंदगी में क्यों है। इसके बजाय अगर हम ये सोचें कि इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और मोटिवेट होके इंस्पायर होके किसी भी चीज़ से जिसको आप लाइक करते हो, प्यार करते हो जिस चीज़ से, तो उस चीज़ को यूज़ करके आप इन सारी प्रॉब्लम से कैसे डील करते हो और इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो वो मैटर करता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ये चीज़ करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग जरूर बनोगे। Can't remember what it's like, just remember I need it. Even if I'm on the train of thought I'm on, wasn't the right one. Gotta trust a God, yeah, no matter what happens.